and a warm welcome on this FIIP platform here. You are here on FI platform, that is the Federation of Indian Industry and Professionalism. Today, we are into the industrial awareness program that we normally conduct every Saturday. And just time is 5 p.m. to 6:30, but yes, sorry for that delay of 5 minutes here today. This week, we have with us Mr. Anup Ladda ji, and we are into the session of the 12th session as far as this platform is concerned. A lot of great response we are getting on these sessions. So please welcome everyone. And in between, if you have any link, you can share this link to the other people as well. So today we have Mr. Anup Ladda sir. He is an investment expert. Welcome Anup Ladda sir here. Hello. Yeah. Thank you, today, thank you, yeah. We are very much happy and grateful that you all could join in this evening. And please ensure that all mobile phones are on the silent mode. But yes, if possible, you can have the video on so we can get the more benefit out of this. I requested to do the participation throughout the session, and please be there till the end. Please put up your questions, and definitely we shall take these questions maybe in between or at the end of the session. Investment of your further 90 minutes is very valuable to us, and we respect that. So, all right, thank you everyone once again. Before starting, I have one question to everyone. And in between, you can just mute yourself and use the chat box here. How are you feeling today? So can you just have a response into the chat box here today, please? Yeah, you can use the chat box here. How are you feeling today? Thank you very much. Yeah, awesome. Bhushanji said awesome, right? Others, please. Thank you very much. Education, super. Yeah, thank you. Yeah, yes, definitely. We have some expectation, setting expectation for 90 minutes here. Before starting, I have to mention one quote, and that quote is very important here. Everybody is with me. The quote is that the world is changing very fast. The world is changing very fast. Big will not beat small anymore. Big champions will not beat small anyone. It will be the fast beating the slow. It will be the fast beating the slow. Means हमारा जो ये वर्ड है बहुत ही फास्ट तरीके से चेंज हो रहा है. हमें ऐसा लगता है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े कॉर्पोरेट्स हमको बीट करेंगे, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है. बीटिंग इज बेसिकली फॉर द स्लो मूवर्स, not for the fast movers. So this has been quoted by Rupert Murdoch. So thank you very much each and everyone. Today we are into this platform, and just give me 1 minute. I'm just presenting the FIP as far as the FIP platform is concerned. Just give me 1 minute here. My slide is visible to everyone? Yes. Thank you very much. Today is the 19th July, and we are into the series of industrial awareness program. That's the 12th of this program. And the program name is basically Art of the Investing in the Stock Market. And we have our expert, Mr. Anup sir, today. Thank you. As far as the FIIP is concerned, I think everybody knows by this time, this is the Federation of the Indian Industry and the Professionalism. We have a unique multi-stakeholder and organizations for the visionary industrialist, businessman, and then professional. And definitely today's expectation is basically, first of all, we'll have the welcome to this FIP platform. Then probably introduction about the FIP, what FIP is working on this, what is the platform, what is the mission, what is the vision. After that, what are the happening into the business challenges, as a business challenges. And then provided by, there will be the talk by our today's expert, Mr. Anup sir, on the art of investing into the stock market, followed by questions and answer. And finally, there will be vote of thanks and the closing. Thank you. Yes, as far as the FIP is concerned, this platform is basically made to help to the business people.
So in that, business is all about solving the people's problem and not for the profit. Ultimately, yes, profit will be there, but before that, we should be able to understand the problems of the others. So this platform basically is for the solving the people's problem here. Into that, we can see here, these business people normally work into the idea generation, then its implementation, then further its sustenance, and finally they will get the ultimate improvements on this platform. As far as this industrial growth and development is concerned, we are normally excelling this platform basically for the industrial growth, and we can see there is a lot of opportunities as far as the India is concerned and even outside the India for the industrial growth, especially into the SMEs and MSME. Yes, thank you. As far as the economic development is concerned, India is now in the developing country, and a lot of interaction, lot of collaboration, lot of networking, lot of, we can say, the expert people has to be turned on the same platform, and basically they can cater for the industrial growth and ultimately for the economic development. Yes, thank you. Yes. As far as the business is concerned and as far as the professionalism concerned, this platform is basically helping each and everyone, especially into the MSME and into the SME consent. Thank you. Yes, here we can understand, the platform is understanding the common problems of the industrialists, entrepreneurs, and the startup peoples. Into that, normally we are identifying the problems, and probably with the thought process, with the brainstorming, with the theme, we can say the theme of theme, we are normally going for the probable solutions. After these probable solutions, what are the correct solutions normally we are approaching so that ultimately we are towards the result of my business. Thank you. Yes, apart from this platform normally support for the personal as well as the professional development. Into that, very important thing is that I think everybody knows this activity start from the self-awareness. Yes, after that there will be competency. In the competency, we can say the knowledge, skill, and the attitude. These are the three parameters is very important. So we have to identify this parameter. We have to identify the required trainings. We have to identify the potential. We have to identify the capital resources, and ultimately we should be towards growth of my organization. Yes, thank you. As far as this FEEP is concerned, again, apart from this FEEP platform is normally working for the interpersonal relationship improvements. Into that, what are the conflicts basically into the industry? What are the positive vibrations? What are the self-awareness? Very important thing is that our values is basically the collaboration. Our values is basically for the belongingness, and our values basically for the self-esteem. So we are working into that so that my ultimate personal as well as the organization or professional goal will be achieved very, very smoothly. Thank you. Yeah, how it is possible here? So on this FEEP platform, we are identifying their challenges. What are the thought process of the teamwork? What are the thought process of the success formula? What skills is required and what practice has to be there? So we normally take all this into the brainstorming session, and normally we support to the industry. Thank you. Apart from this, what are the challenges as far as the business is concerned? So we have identified the challenges. Normally we have categorized into the business strategy. We have categorized these challenges into the marketing. Yes, we are also supporting for the marketing. We are also supporting for the business strategy. What are the business strategy? What are the business plan? What are the mission? What are the mission? And accordingly, we are into the planning of the recruitment. After the recruitment, there is a management. So if my management is very strong, management has some strategy, yes, definitely my team will be excellent. And then execution of that team, execution of that business plan will be happen through the talent team. Apart from that, sales is also very important. So we are taking care of the sales. And apart from today, the scenario is that we have into the innovation, we have into the technology. So FEEP platform understanding this as well. Thank you. Yes, we can even understand the business cycle, how the cycle started from the requirement from the customer and how it goes to the back to the customer. So in the first phase, we can understand the customer specific requirement and how it is to be converted throughout the all interfaces
and ultimately my customer should be happy. So we normally calculate the customer satisfaction index maybe at the end. So once this customer is happy, then probably there will be number one, development related new business, as well as the repeated business will happen here into this. Thank you. Yes, apart from this, what is happening into the fee platform? So far, we have already covered 11 sessions like this. Today we are into the 12th. हम आज 12वें सेशन में हम आज हैं. उससे पहले हमने ऑलमोस्ट 11 सेशंस अटेंड किए हैं. 11 सेशन में आप देख सकते हैं इधर. I cannot read this, but definitely you can just take the snapshot. ये आप स्नैपशॉट ले सकते हैं. इसमें आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज नीति, a strong and cost control system, importance of the business compliance, developing the business model and the financial planning. It has been executed by Mr. C.A. Mayur Mantri. Importance of the quality management system to grow the business. Ultimately, into the insurance sector, we have already covered the life insurance, medical insurance, and apart from that, to excel my business, what are the requirements as far as the digital marketing is concerned? So we have covered that as well. Yes, apart from that, we have Mr. Yogesh Unde sir, and he has already delivered how to be the high performance entrepreneur. I think that is a very, very important thing as far as the entrepreneur is concerned. And apart from that, in the session 10, we had a discussion into the bankruptcy, insolvency, and lastly, last Saturday, we have been covered money never sleeps by our respected Mr. Shiv Shankar Bin. So altogether, we have covered 11 sessions as far as Saturdays this theme is concerned, and we could reach more than 1,000 different experts and the professionals. Yes, apart from this, every Wednesday, we have a weekly business meeting on this platform. So I will request each and everyone, please be the part of this weekly business meeting and see that what is happening positive on this platform. Yes, thank you. Yes, till this time, फी प्लेटफॉर्म में क्या क्या हो गया. तो फी प्लेटफॉर्म में सबसे पहला अब तक शिवनेरी चैप्टर ये लॉन्च हो गया है हमारा 1 मई में. ऑल टुगेदर purely businessmen are there and 20 members are available there. Till this time we got the 35 referrals. I think बहुत सारे लोगों को रेफरल क्या होता है, 1-to-1 क्या होता है या मेंबर्स क्या होता है शायद पता नहीं रहेगा. But yes, to know that, I will request each and everyone, please visit and please attend at least one Wednesday session here. So thank you. All together, we are into the business, and ultimately in the business, our growth is very important. So all together, till this time, we had a success of 16 lakh business in previous days. Thank you. Apart from this platform is planning to have the 4 more chapters here within this next 2 months, and we are covering PCMC area. We are covering Pune area, Mumbai area, Nagpur area, and yes, we are even thinking for the pan-India online expert as well. So I will request each and everyone, please be connected here on this platform. Yeah. Till this time, apart from this, our expert comes on this platform, and they just have the deep dive as far as the his specialized area. So our respected Mr. Mayur Mantri sir has taken this subject, that's discover the secret of the business growth, and this has been conducted from 15th and 17th of the May. Ultimately, we have covered 21 participants, and topic covered is very important. That is a business model. That is a Canvas business model. Top funded successful startups. Role of the founders in the early stage. Business, financial planning, and many more we have covered. And literally, all participants had enjoyed this session. Thank you. Good news to everyone is that we are even planning this in the month of the July as well. Whoever is interested, maybe they will connect to the FIP so that they can get registered and enrolled for the next session as far as the discover the secret of the business growth is concerned. Thank you. Yes, today I will not take much time. Yes, definitely. And today we have a plan of art of the investing in the stock markets. So today we have a respected speaker, Mr. Anup Laddaji. He's an expert into the investment expert. So I will just read his biography so that other people will understand it. Anup Laddaji, ye by professional, he has almost 8-year experience into the financial management, Indian stock market, technical analysis, and then fundamental analysis. By professional, he is a chartered accountant since 2013 and working in the area of the automation trading in the stock market,
as well as AI in the stock market. This is very, very important because many people, they are unknown about AI basically. He is a CFO at the Brahma Financial Consultancy and the Stock Market Services. Today, we are going to cover the topics that's a myth about the stock market. Why to invest into the stock market? What is the stock market? How to enter into the stock market? What is a direct equity versus indirect equity? Introduction of the AI-based advisory model, $1 million advice. That's very important here. Thank you very much. And where to go for the execution. So today we are covering these chapters, and we have a respected Mr. Ram sir as a speaker and as an expert for the today. So this is the chapter again, arts of the involving into the stock market. So I will request once again to Anup sir on this fifth platform, and I'll be happy to introduce you sir today, and I will request you to just go ahead with the session. Thank you very much, Anup sir. Thank you. Anup sir, you are there? Yeah. Thank you, Sanjay sir. Yeah, before starting you, I request each and everyone, please clap Anup Ladda sir, and he is very expert into the investment expert, and I will hand over this platform to Mr. Anup Ladda ji. Thank you very much to each and everyone for kind listening. Thank you. Thank you everyone. Thank you, and sir. First of all, warm welcome to all of you who are joining in the Zoom meeting through the fifth platform, as well as who are watching on the Facebook live. And thanks to FIP and Navnath sir, Sanjay sir and Mayur sir for giving me opportunity to present this subject before you. So we will start with the subject. मेरा introduction वैसे तो संजय सर ने किया है, but formally I'll start with the introduction. Myself, Anup Ladda. I'm a chartered accountant since 2013, as well as I have experience of more than 8 years in the Indian stock market. And also I'm the CFO at Brahma Financial Consultancy and Stock Market Services, which is the business partner of Angel Broking Private Limited, then TradeTron, it is a automation trading platform, and the Jarvis, which is the artificial based intelligence advisory model. So with this, we will start with our session. Sure, sir. Go ahead, please, sir. Yeah. Sir, screen sharing. Can you please allow me to share the screen? Just 1 minute, sir. Yeah, it's there, sir. Yeah, okay. Fine. Thank you. So हम स्टार्ट करने से पहले सेशन आज का एजेंडा पूरा एक बार डिस्कस कर लेते. हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर. हम पूरे सेशन में क्या डिस्कस करने वाले. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टॉक मार्केट के बारे में जो मिथ्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. मिथ्स अबाउट द स्टॉक मार्केट. बिकॉज सी कोई भी बिजनेस है, कोई भी नया चीज आप कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपके जो रॉन्ग बिलीफ्स है उसको पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है. देन आप आगे उसमें ग्रो कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो कॉमन मिथ्स है उसके बारे में जानेंगे, एंड उसके विद एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाई टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. देन हम स्टॉक मार्केट के बारे में लाइक व्हाट इज द स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली, तो उसके बारे में हम जानेंगे. लाइक व्हाट इज द स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट आर द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, उनके फंक्शंस क्या है. देन हम हाउ टू एंटर इन द स्टॉक मार्केट, कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू वी कैन पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट, ये हम जानेंगे. देन आज का जो कोर टॉपिक रहेगा वो डायरेक्ट इक्विटी वर्सेस इनडायरेक्ट, मतलब लाइक बाय यूजिंग कैश सेगमेंट हम कैसे इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन कर सकते, इसके बारे में जानेंगे. और ये सब जब हम फर्स्ट 5 चीजें क्लियर करेंगे उस टाइम पे बहुत से ऑडियंस के लाइक न्यू उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे. तो all will be resolved in the artificial intelligence based advisory model. It is something new and innovative, but yet it is very powerful, simple and powerful. इससे you can plan your investment. तो उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. एंड एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको लाइक आई विल गिव यू द रोड मैप फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड how you can start your investment journey, like from today itself. अगर मार्केट में न्यू हो, स्टिल आप मार्केट में कैसे पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको एक रोड मैप बताऊंगा. एंड फाइनली हम बिफोर कंक्लूडिंग द सेशन हम एग्जीक्यूशन कैसे करना. जैसे ये सब चीजें तो हो गई, बट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, लाइक
व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, इसके बारे में हम पूरा समझेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड द सेशन। सो हम आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक को वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द मिथ्स अबाउट स्टॉक मार्केट। सो बिफोर स्टार्टिंग में यहाँ पे ऑडियंस को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने लोग हैं वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट आप क्विकली चैट बॉक्स में मेंशन करिए वो आर ऑलरेडी वर्किंग इन द स्टॉक मार्केट। हेलो, ओके ओके, ग्रेट, नाइस सर, ग्रेट ग्रेट, एवरीवन, रोनक चंदक, प्रसाद सावे, ओके ग्रेट। सो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्टॉक मार्केट, अगर अगर हम स्टॉक मार्केट में बारे में बात कर, सबसे बड़ा मिथ, स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बलिंग, इट इज वेरी रिस्की। द पीपल हु आर नॉट इवन इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट वो भी हमें सजेशन दे रहे हैं स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, इट्स अ गैम्बलिंग, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जस्ट लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। जो मैं आपको I'll explain you with example ki how the stock market is not risky over the long term. This is the Sensex chart. Since we will observe since 1990 to the 2021. See 1990 में Sensex was around 5,000. Then 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम सामने आया। उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज ही इज पॉपुलर, उनके बारे में वेब सीरीज भी आ चुकी है। तो तब मार्केट में थोड़ा हिकअप्स लिया, लाइक मार्केट कम्स अराउंड, माय डियर फ्रेंड्स, नॉट लाइक दैट, ये कंटिन्यूअसली चलने वाली चीज है। बिकॉज यहाँ पे जो भी कंपनी लिस्टेड है, दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिस, लाइक बेस्ट इंडस्ट्रीज इन द लाइक इन द सेक्टर, इन द इंडस्ट्री। देन मार्केट स्टार्टेड मूविंग 2004 से आप ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट ने थोड़ा सा लाइक कर्व थोड़ा चेंज हुआ मार्केट का, फास्ट ग्रोथ, बिकॉज वहां से हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ स्टार्ट, लाइक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई इंडिया। और बाद में यहाँ पे अगेन 2008 में एक हिकअप्स आया जहाँ पे सत्यम का स्कैम हुआ एंड देन लेमन ब्रदर्स का जो शटडाउन हुआ था, देन यूएस में क्राइसिस है, तभी भी लोगों को लगा था मार्केट खत्म हो जाएगा, बट अगेन मार्केट स्टार्ट मूविंग। तो आप ये लॉन्ग रन में देखोगे तो स्मॉल हिकअप्स आर कमिंग बट मार्केट इज मूविंग इन देयर वे। और अभी यहाँ पे देखोगे 2014 में इट वाज अराउंड 20,000। यहाँ पे जो मूव आया है ये तो सबको पता है अब की बार, तो उसकी वजह से ये मूव आया। बट लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, मार्केट जो मूव करता है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। जब कोई स्टेबल गवर्नमेंट आता है तो मार्केट परफॉर्म वेल, और उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूअसली ग्रो किया। बाद में यहाँ पे जब 2020 में जब कोविड पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो वो टाइम पे मार्केट ने सडनली एक एक हिकअप्स आया था, मार्केट में एक करेक्शन आया था एंड देन अगेन मतलब कोविड का पूरा पैंडेमिक खत्म भी नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुआ था प्रॉपर, वहां से मार्केट ने पूरा फिर से लाइफ टाइम हाई पे अभी मार्केट चला गया। तो ये एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबी रेस का घोड़ा बन के खेलोगे तो स्टॉक मार्केट इज नॉट एट ऑल रिस्की। दिस इज द very best thing to create wealth creation. You can create your wealth through the stock market, but just आपको लॉन्ग रन में काम करना है। शॉर्ट टर्म में आपको शॉर्ट टर्म ड्रॉ डाउन आ जाए, कुछ लॉसेस आ जाए, बट यू कैन ऑब्वियसली बाय स्टडिंग यू कैन मिटिगेट एवरीथिंग। सो आई होप ये मिथ्स क्लियर हुआ है कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग रन में रिस्की नहीं, इट्स वेरी सेफ। एंड सेकेंड थिंग, बहुत जनों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज, यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज, जैसे यू शुड हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए और कुछ फिरंगी इंस्टीट्यूट्स के आपके पास डिग्री होनी चाहिए, देन ओनली आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकोगे।
So this is not true. I'll give you the example of Radhakrishna Damani sir. You know Radhakrishna Damani Avenue Supermarket को सबको पता है. Right now DMart is having 220 stores across the country, and Radhakrishna Damani sir is a college dropout, first year BCom. He's an undergraduate, and today he's having net worth of $5 billion. So आई थिंक इससे आपको क्लियर होगा. यू लाइक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस होना चाहिए, आपके पास एक आपका गोल सेट होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट में आप करियर कर सकते हो. एंड स्टॉक मार्केट यू कैन create your wealth, and I will not say wealth, you can create your massive wealth through the stock market. ये मैं कुछ आने वाले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा विद द एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस, तो आपको वहां पे पता चलेगा व्हाट इज द पावर इन द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट. सो थर्ड कॉमन मिथ, स्मॉल इन्वेस्टर लाइक मी कैन नॉट मेक मनी. लाइक अभी जनरली हर एक को लगता है कि भाई ये हमारे पास कुछ बड़ा पैसा होना चाहिए, देन ओनली हम स्टॉक मार्केट में काम कर सकते. तो आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ Paurinho Valiance sir. Paurinho Valiance sir is the renowned portfolio manager, and he is having renowned portfolio management company in India, Equity Intelligence India Private Limited. तो हम इनके जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. Like he is having portfolio of 21.687 CR right now. और इनके फैमिली में 1990 से पहले एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया. उस सिचुएशन में लाइक इट वाज सो सीरियस कि उनको उनका जमीन जायदाद जो भी था सारा बेचना पड़ा. ही वर्कड एज अ अकाउंटेंट एट ₹1000 per month salary. Then he worked in the Ernakulam Stock Exchange, Ernakulam Telephone Exchange. Then he's completed its law degree. अब you can correlate this with the last point कि आपके पास like knowledge होना चाहिए, degree. He is having law degree. Is nothing to do with the stock market. Then in 1990 उन्होंने 4 years Kotak Securities में floor trade as a floor trader work किया. Then 1995 he joined as an analyst at Parik Securities for 5 years. 1990 में again he moved back to the Kochi and worked with the Geojit Financial and portfolio management services का company start किया. It is one of the reputed company today, Equity Intelligence Private Limited. So why I am explaining everything कि इनके पास भी कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था. He was also small investor, but today he's having big portfolio. So we can also achieve this to the stock market. And अभी fourth common myth है, तो बहुत लोगों को लगता है कि भाई renowned कंपनी जो है वो अब आगे रिटर्न्स नहीं देगी या फिर कम रिटर्न्स देगी, बिकॉज उन्होंने तो ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है. तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. जैसे इकोनॉमी एक लेबर प्रोडक्टिविटी कर्व है. तो व्हाट लेबर प्रोडक्टिविटी कर्व से कि आप अगर लाइक कोई भी लेबर है जो अगर फर्स्ट ईयर वर्क करता है तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम रहेगा, और जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो ऑब्वियसली इट स्टार्टेड गिविंग लाइक हाई परफॉर्मेंस. तो सेम हैपेंस विद द रिनाउंड कंपनी. तो जो भी अभी रिनाउंड कंपनी जैसे अभी ब्रिटानिया, एसबीआई, विप्रो, इन्फोसिस, देन इनकी बहुत बड़ी स्टोरीज ऑलरेडी बन चुकी, बट स्टिल दे हैव मच पोटेंशियल. इससे मुझे एक एग्जांपल याद आया. मेरे क्लाइंट ने मुझे पूछा था कि सब उसके पास एक 15 लाख का फंड आया, तो ही वाज आस्किंग कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. तो मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लो. तो वो बोला कि स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की है सर. तो मैंने बोला फिर आप मुझे बताओ आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे. तो उसने बताया कि मैं एसबीआई में इन्वेस्ट करूंगा. तो मैंने बोला अरे भाई अगर तू एसबीआई में एफडी कर रहा है दैट मीन्स आपका एसबीआई पे ट्रस्ट है, देन व्हाई यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन द एसबीआई शेयर्स फॉर द लॉन्ग टर्म. सो इससे एक चीज क्लियर होती है कि रिनाउंड कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है. ऑब्वियसली बिफोर इन्वेस्टिंग यू हैव टू लर्न अबाउट द कंपनीज फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल थ्रू द एक्सपर्ट्स, एडवाइजर्स, एंड बाद में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. डेफिनेटली दिस बिग कंपनीज अगेन गिव यू द मोर रिटर्न इन द फ्यूचर. सो विद दिस हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जैसे व्हाई टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. अभी ये जो हमने मीट्स देखा है दैट इज द रीजन कि हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है. ये स्टोरीज अगर
हमको जैसे राधा कृष्ण दमानी सर का हम देख रहे, पॉलिन जो वेलियन सर का देख रहे, ये जो ग्रोथ हमें करना है तो वी हैव टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। एंड सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, अभी जो पैंडेमिक आया, कोविड पैंडेमिक, इसमें बहुत जनों की जॉब सैलरीज कट डाउन हुई, किसी की जॉब चली गई, किसी के बिजनेस में टर्नओवर कम हुए, प्रॉफिट कम है, बिजनेस शट डाउन हुए। तो यहाँ पे रियलाइज हुआ कि यार कुछ तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दिस यू हैव टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट। आप छोटे से छोटे कैपिटल के साथ यू कैन स्टार्ट जर्नी इन द स्टॉक मार्केट। अकाउंट ओपनिंग इजी टास्क है, देन यू कैन इन्वेस्ट क्विकली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अगर एफडी के साथ स्टॉक मार्केट में कंपेयर करोगे तो एफडी इज नॉट इवन बीटिंग द इन्फ्लेशन। अभी करंटली जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट इट इज अराउंड 7%, एंड एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज अराउंड 5.5%। एंड आई एम एज्यूमिंग कि आप सब 30% स्लैब में हो, तो आप टैक्स डिडक्ट करने के बाद यू आर गेटिंग ओनली 3.85% इन हैंड। तो आप अगर रियल रिटर्न अगर कैलकुलेट करोगे तो यू आर गेटिंग निगेटिव रिटर्न्स 3.15%। तो स्टॉक मार्केट कैन गिव यू मोर रिटर्न, क्योंकि अभी जो हमारा इंडियन इकोनॉमी इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी right now। speed of growing economy is 12%। तो it is fastest growing economy। अभी जो हमारा इंडियन इकोनॉमी इट इज द 6th लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और अभी जो उसका वैल्यूएशन इट इज अराउंड $2.708 ट्रिलियन। बट 2025 में गवर्नमेंट का टारगेट है कि ये इसको $5 ट्रिलियन में इसको लेके जाएंगे। तो ऑब्वियसली अभी के जो पीछे के पीरियड में जो मार्केट में ग्रोथ मिला है, तो यू कैन इमेजिन अगर ये जब इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन हो जाएगी तो ये ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली। तो यू विल विन द रेस अगेंस्ट द इन्फ्लेशन यूजिंग स्टॉक मार्केट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 4th पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन। यू कैन डू डाइवर्सिफिकेशन। कभी आपको लगता है कि चलो आई हैव द फंड बट मुझे डाइवर्सिफाई करना है, जो भी टॉप मोस्ट सेक्टर है हर सेक्टर में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल। और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड भी है तो यू कैन नॉट मैनेज प्रोफेशनली, बट थ्रू द स्टॉक मार्केट यू कैन पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। डाइवर्सिफिकेशन इज पॉसिबल। कभी आपको लगता है फार्मा सेक्टर में कुछ इन्वेस्ट कर दिया, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कर दिया, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक में कर, कुछ प्राइवेट बैंक्स में इन्वेस्ट किया, तो यू कैन डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। तो अभी तो हमने ये चीज समझ ली, मिथ्स अबाउट द स्टॉक मार्केट, व्हाई टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। अभी हम बेसिक की तरफ अभी थोड़ा जाते हैं। व्हाट इज द स्टॉक मार्केट, सब क्यों करना है ये तो समझ में आ गया, बट एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। स्टॉक मार्केट में ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में हर चीज में, आई विल कीप इट वेरी सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। स्टॉक मार्केट इज द प्लेस वेयर buyer and seller can buy and sell their securities without meeting and knowing each other digitally। एंड अंदर इंटरमीडियरी रहेगा आपके स्टॉक ब्रोकर्स एंड एक्सचेंज, जो आपका सेटलमेंट इजीली होगा एंड बहुत फास्ट लिक्विडिटी बहुत रहेगी इसमें। देन व्हाट इज द important component of the stock market? Stock exchange is the important component of the stock market। ये जो पूरा मार्केट जो वर्क करता है, इट इज वर्किंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। we are having two popular stock exchanges in India, one is BSE and other is NSE। तो उसके बारे में हम आगे थोड़ा briefly discuss करेंगे। तो what generally stock exchange do? It facilitates the transaction between traders of financial instrument and targeted buyers। A stock exchange in India adheres to the set of rules and regulation directed by Security and Exchange Board of India, that means SEBI Act 1992। तो ये जो अथॉरिटी है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अथॉरिटी? ये अथॉरिटी का पर्पस जो भी इन्वेस्टर है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है एंड टू प्रमोट द स्टॉक मार्केट।
अब इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? जनरली वो कंपनीज पे वॉच रखते हैं, द कंपनीज वो आर लिस्टिंग, कुछ माल प्रैक्टिसेस होती है, कुछ कंपनी कंप्लायंस नहीं करती है, तो वो सब चीजों को ट्रांसपेरेंटली वो एक्सचेंज थ्रू हमको लाइक जो इन्वेस्टर्स है, स्टेक होल्डर है, उनको इन्फॉर्म करते हैं। एंड इन इंडिया देयर आर टू पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस, एनएससी एंड बीएसई। अब हम इसको ब्रीफली समझेंगे। जो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज एंड नॉट ओनली इन इंडिया बट इट द फर्स्ट एशियन स्टॉक एक्सचेंज। ये 1875 में फॉर्म हुआ था, इसका नाम अलग था, बाद में 1956 में इसका नाम चेंज हुआ। एंड इट्स बेंचमार्क इंडेक्स इज सेंसेक्स 30। अब सेंसेक्स क्या है? ये लाइक बहुत लोगों का क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंसेक्स, व्हाट इज निफ्टी? सेंसेक्स ये इंडेक्स है जो टॉप 10 सेक्टर है, उसमें से जो टॉप 30 कंपनीज है उनके वेटेड एवरेज कुछ कैलकुलेशंस निकाल के वो रिफ्लेक्ट करता है। तो लाइक ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है दैट वी कैन जज थ्रू द सेंसेक्स एंड निफ्टी। तो बीएससी का अपना वेबसाइट है www.bseindia.com and right now BSE में 5749 company listed because it is the oldest stock exchange and around it is having market capitalization of 2.3 trillion and same with NSE। NSE जो है 1992 में आया and NSE is the like the first platform जिन्होंने पूरा technology based upgradation किया and then it is nowadays NSE is the most popular and most सबसे ज्यादा liquidity NSE में है। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई है। किसी को अगर कुछ डाउट है यू कैन आस्क इन बिटवीन। कैन आई कंटिन्यू? Sir, people says good going. Some yes, clear, no issues, something like that. या ओके। सो अभी हमने स्टॉक मार्केट क्या है ये चीज जान ली, देन व्हाई टू इन्वेस्ट। अब सब पार्टिसिपेट कैसे करना है, व्हाट आर द डिफरेंट एवेन्यूज अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट, उसके बारे में जानेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, स्टॉक मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, यू कैन सेट योर डेली गोल, वीकली गोल, मंथली गोल, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट, तो हम इसको ब्रीफली जानेंगे। फर्स्टली इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आज का जो हमारा कोर डिस्कशन है दैट इज ऑन द इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर्स में दो तरीके से आप पार्टिसिपेट, एक तो डायरेक्ट इक्विटी, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इक्विटी इन सिंपल लैंग्वेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन एनी टाइम यू कैन बाय एंड सेल, एंड इनडायरेक्ट इक्विटी मींस आप किसी प्रोफेशनल फंड्स थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इक्विटी मार्केट में। देन डेरिवेटिव्स एंड सेकंड सेगमेंट इज डेरिवेटिव्स एंड F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अगर बहुत कॉमन लैंग्वेज में अगर आपको बताना है तो डेरिवेटिव सेगमेंट मतलब आपके जेब में 1 रुपए और आप 4 से 5 रुपए का काम कर सकते हो। सो साउंड्स गुड ना? इट इज गिविंग यू ल्यूरेज, बट माय डियर फ्रेंड्स इट इज नॉट सो इजी जर्नी। अगर आपको प्रॉफिट 4 रुपए पे होगा तो लॉस भी 4 रुपए पे होगा। तो अगर डेरिवेटिव्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यू शुड हैव सम कॉम्पिटेंसी, आपको कुछ टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सीख के बाद में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो डेफिनेटली यू कैन हेज योर बिग पोर्टफोलियो एज वेल एज यू कैन सेट योर डेली, मंथली, वीकली टारगेट। सेम विद द कमोडिटी, इट इज आल्सो लीवरेज बेस्ड सेगमेंट। देन म्यूचुअल फंड सही है। आईपीएल के टाइम पे बहुत लोगों ने ऐड देखा, तो आई होप सबको पता ही है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। Then debt fund is same like the FD, you are getting fixed returns out of the debt fund। तो then gold fund means जैसे आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो you can invest in the gold fund through the exchange। then index fund, अभी index fund is also beautiful instrument। why? because जैसे मैंने बताया सेंसेक्स ने इतना ग्रो किया है, अगर आपको अगर लगता है कि मुझे
टॉप 30 टॉप 50 कंपनी के साथ ही पार्टिसिपेशन करना है। आई डोंट वांट टू स्पेंड मच टाइम ऑन स्टडीज, बट मुझे थोड़ा हायर रिटर्न चाहिए, तो यू कैन इन्वेस्ट इन द इंडेक्स फंड देन बॉन्ड्स। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई अबाउट द वेरियस एवेन्यूज अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट। तो हम इसके बाद अब हम हमारे जो मेन टॉपिक है उस पे हम आते हैं। हम अभी डायरेक्ट जो इक्विटी है और इनडायरेक्ट इक्विटी, इसमें डिफरेंस क्या है इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू these are the various avenues available in the stock market. Like every segment is having different returns potential, but every segment is having its own beauty. तो आपके पास अगर बड़ा फंड है तो ऑब्वियसली आपने डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कुछ फंड म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, कुछ पैसा डेब्ट फंड में डाइवर्सिफाई करो, कुछ गोल्ड फंड्स में, कुछ इक्विटी शेयर्स में, तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू द गुड रिटर्न। तो नाउ अब जो हमारा आज का जो मेन कोर कंसेप्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट इक्विटी वर्सेस इनडायरेक्ट इक्विटी। डायरेक्ट इक्विटी के बारे में अगर सिंपली बताना है तो भाई मार्केट में जाओ और जो मन चाहे वो खरीद लो। कभी एसबीआई खरीद लिया, एसबीआई के मालिक बन गए, बाटा इंडिया खरीद लिया, बाटा के मालिक बन गए, आप इन्फोसिस खरीद लो, इन्फोसिस के मालिक बन गए। देन व्हाटएवर आपको जब लगता है आप यू कैन बाय। ये बहुत सिंपल लगता है, बट वेट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ ताकि आप आपका कैपिटल प्रोटेक्ट कर सको। ये मैनुअल, जब भी आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो तो कुछ चीजें हमको पहले पता करनी कंपनी के बारे में। उसका स्वॉट एनालिसिस, what are the strengths of the company, what are the weaknesses of the company, what are the opportunities available to the company, what are the threat. This all can be done by the fundamental analysis and technical analysis. तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या है कि कंपनी के जो रेशियोज है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी का प्रोडक्ट पोटेंशियल है, सर्विसेज पोटेंशियल, वो कितना है, ये आपको फाइनेंशियल पैरामीटर्स के साथ और इंडस्ट्रियल लाइक जो इंडस्ट्री से वो कंपनी बिलोंग करती है उसके एनालिसिस से आपको कंपैरिजन करना है। तो जनरली अगर मुझे कोई टिप देता है, इंडिया में अपना टिप बहुत फेमस है कि भाई ये बाय कर ले, तो व्हाट जनरली आई लुक फर्स्ट, तो मैं आपको एक दो पैरामीटर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। आई लुक फर्स्ट पी रेशियो, कि उसका पी रेशियो क्या है। पी रेशियो मतलब क्या, प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब जो शेयर्स का प्राइस है और उसका अर्निंग पर शेयर है वो रिफ्लेक्ट। जैसे अगर पी रेशियो 5 है तो कंपनी में 1 रुपया अर्न करने के लिए आपको 5 रुपए इन्वेस्ट करना है। एंड एक कंपनी का पी रेशियो 10 है तो 1 रुपए अर्न करने के लिए 10 रुपए इन्वेस्ट करना है। तो टेल में आप कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? सर चैट बॉक्स ऑन है। P ratio 5. Okay, good. So that's great. Yeah, everyone is correct. Lowest P ratio. And but friends, यहाँ पे मैं आपको एक अब इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जस्ट डोंट ब्लाइंडली फॉलो द सिंगल रेशियो। अब इसके साथ आपको क्या करना है, अब मैं आपको एक टॉप डाउन अप्रोच बताता हूँ। जैसे आप अगर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हो तो कैसे एनालाइज करना है। फर्स्ट फाइंड आउट ये कंपनी कौन सा सेक्टर से बिलोंग करती है एंड व्हाट इज द एवरेज पी रेशियो ऑफ द सेक्टर। इसके कॉम्पिटिटर्स कौन सी कंपनियां, उनके पी रेशियोज क्या है। देन चेक द प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कंपनी का जैसे सेम इंडस्ट्री में 5 कंपनियां हैं, बट जो कंपनी हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसका प्रॉफिटेबिलिटी चेक करो कि उसका ग्रोइंग रेट क्या है, उसका प्रोडक्ट पोटेंशियल कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, एंड देन यू डिसाइड टू द इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। just don't blindly use any parameter. Just I have just given one parameter for the example. बस इस तरीके से आपको सेक्टर एनालिसिस, देन उस कंपनी के जो पीयर कंपैरिजन, उस सेक्टर में कौन सी कंपनियां है उनको एनालिसिस करने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और अब ये जो डायरेक्ट इक्विटी मेथड है इट इज वेरी पावरफुल। लाइक मैं, अगर मुझे कोई बोलता है मार्केट में इन्वेस्ट करना है
तो आई विल प्रेफर द डायरेक्ट इक्विटी मेथड। ये क्यों, मैं आगे आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। अभी ये सब चीजें एनालिसिस करना और ये सब चीजें, तो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजरी के बारे में बताऊंगा। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब इसके बाद लाइक सब लोगों ने केयरफुली सुनना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड समथिंग न्यू, एंड आई कैन टेल यू इट विल चेंज योर विजन टुवर्ड्स द मार्केट डेफिनेटली। कि मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है वो पूरा आपका चेंज हो जाएगा आफ्टर डिस्कसिंग दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजरी। और अभी जो मैंने आपको बताया फंडामेंटल एनालिसिस है, तो लाइक कुछ वेबसाइट्स है, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो, www.skinner.in। इट इज वेरी पावरफुल वेबसाइट, जहाँ पे जो मैंने चीजें बताई आपको, सेक्टर एनालिसिस करना है, रेशियो एनालिसिस करना है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना है, तो दैट ऑल कैन बी डन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। वहाँ पे आपका अगर आपको कोई कुछ कंपनी के बारे में जानना है, तो आप उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, 5 इयर्स का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये सब चीजें आपको वहाँ पे मिलेगी। देन सेकंड मेथड इनडायरेक्ट इक्विटी, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। म्यूचुअल फंड, ऑब्वियसली मैंने लास्ट स्लाइड में बोले एवरी प्रोडक्ट हैज इट्स ओन ब्यूटी, तो कुछ पैसा यहाँ पे भी डाइवर्सिफाई करना है। तो म्यूचुअल फंड से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज मतलब कुछ जो स्टॉक ब्रोकिंग हाउसेस, कुछ फर्म से जो आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, बट उनका टिकट साइज मिनिमम 25 लाख 50 लाख होता है, और सम रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो यू कैन पार्टिसिपेट इन द इक्विटी मार्केट थ्रू द बोथ मेथड, डायरेक्ट इक्विटी एंड इनडायरेक्ट इक्विटी मेथड। तो अब मैं आपको पावर ऑफ डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट बताऊंगा, बिकॉज इट इज माय फेवरेट, बिकॉज आई नो पावर ऑफ द डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्ट, बिकॉज सिंस लास्ट 8 इयर्स मेरा जो स्टॉक मार्केट का जर्नी था वो सारे फेजेस मैंने देखे। इनिशियली मैंने बहुत सारे लॉसेस भी किए, देन आई रिकवर्ड इट, और बाद में जो चीजें सीखी उससे मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज वेरी पावरफुल। मैं आपको एक स्टोरी और एग्जांपल के साथ ये चीज बताऊंगा। कुछ 2018 की बात है, मैं एक असाइनमेंट के लिए मुंबई गया था। तो मुझे स्टेशन पे पिकअप करने के लिए एक अकाउंटेंट आया, सीनियर अकाउंटेंट। देन आई वाज अमेज्ड, वो मर्सिडीज लेके आए, और मर्सिडीज जो उसका कार का जो वैल्यू था तो अराउंड 2 करोड़ 3 करोड़। तो मैंने उनको पूछा, साहब ये कब लिया आपने? तो वो उन्होंने बताया कि यार 2030, मतलब कैसे 1993 में। तो बोला कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने, अब मैं आप ये स्टोरी को पूरे एग्जांपल के साथ समझेंगे, हाउ उन्होंने जैसे 1993 में इन्वेस्ट करके कैसे अपना गोल अचीव किया। यस, तो सी 1993 में आईपीओ आया था इन्फोसिस का। तो उस आईपीओ में 95 रुपीज में इन्फोसिस के शेयर्स अलॉट हुए। बाद में 1994 में, अब यहाँ पे आप यू कैन कोरिलेट 2-3 थिंग जो मैंने पहले बताया, कि लंबी रेस का घोड़ा बन के मार्केट में काम करोगे, लॉन्ग टर्म में काम करोगे तो बेनिफिशियल रहेगा। तो आप ये सब चीजें यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हो। सी 1993 में आईपीओ आया, 100 शेयर्स अलॉट हुए। 1994 में बोनस, व्हाट इज बोनस? बोनस मीन्स जब कंपनी का एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके पास एक शेयर से उनको एक शेयर, लाइक रेशियो इज डिसाइडेड बाय द कंपनी इन द बोर्ड मीटिंग, इन द शेयर होल्डर्स मीटिंग, और उसके अकॉर्डिंगली फ्री ऑफ कॉस्ट एडिशनल शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 1994 में 200 शेयर्स बन गए। 1997 में अगेन कंपनी इशूड द बोनस 1:1, तो वो 800 शेयर्स हुए। देन 2000 में 2:1 स्प्लिट हुआ, मतलब कंपनी ने फेस वैल्यू कम किया, तो कंपनी का जो 2 शेयर्स था वो एक शेयर था वो 2 में कन्वर्ट हुआ, तो ऑब्वियसली शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। देन इन 2004 3:1 बोनस, तो number goes to 6,400. Then in 2014 1:1 bonus, number goes to 25,600. In 2015 1:1 bonus, number goes to 51,200. Again 2018 में उन्होंने
बोनस दिया और उस बोनस के साथ जो कंपनी का शेयर्स का नंबर ऑफ शेयर्स 1,02,400 हुए. So can you imagine how much percent is growth? Today the value of the portfolio is around 14 crore 45 lakh 88,800. So tell me which industry is giving this much return? So this is the power of डायरेक्ट इक्विटी. और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, आप विप्रो की स्टोरीज देख लीजिए, आप यू कैन गूगल इट कि कैसे 1980 में 10,000 टन्स इनटू द मोर देन 252 करोड़ इन 2017. और ऐसी बहुत सारी कंपनियां, आप जो एसबीआई, इन्होंने भी इन बिटवीन कुछ लाइक कॉर्पोरेट इवेंट्स हुए तो काफी वैल्यूएशन बढ़ा है. बहुत सी कंपनियां, आई कैन गिव यू मेनी एग्जांपल. सो दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो अभी तक जो डिस्कस किया, एक बार हम क्विकली इसको रिवाइज करते. सबसे पहले हमने देखा व्हाट आर द मिथ्स, कॉमन मिथ्स अबाउट द स्टॉक मार्केट. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो, डेफिनेटली इक्विटी मार्केट इज नॉट रिस्की. एंड आफ्टर लुकिंग एट दिस एग्जांपल आई कैन से इट इज नॉट एट ऑल रिस्की अगर लॉन्ग टर्म में आप प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करके काम करोगे. फिर हमने समझा व्हाई टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, फिर व्हाट आर द स्टॉक मार्केट, व्हाट आर द डिफरेंट एवेन्यूज, एंड देन बाद में हमने डायरेक्ट इक्विटी, इनडायरेक्ट इक्विटी, और अभी पावर ऑफ डायरेक्ट इक्विटी हमने समझा. अब हम हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शिफ्ट होते. तो भी बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मुझे बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पे कितने लोग जानते हैं? चैट बॉक्स में मेंशन करिए क्विकली. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कितने लोग जानते हैं? ग्रेट. अशोक सर टेलिंग यस, अमित सर नो, श्रद्धा नो, चांडक नो. ओके, या करेक्ट संदीप जी, इट्स लाइक रोबोटिक. ओके, ग्रेट. सो काफी लोग लाइक ये कंसेप्ट के लिए न्यू है, तो आप बहुत केयरफुली अब आने वाला जो अभी हाफ एन आवर रहेगा, तो केयरफुली आप इसको जस्ट वॉच करिए. तो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सॉफ्टवेयर है, ये प्रोग्राम है जो आपका पोर्टफोलियो पूरा रोबोटिक वे से मैनेज करता है. जो भी चीजें हमने पीछे डिस्कस की, जैसे रेशियो एनालिसिस, देन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, चूजिंग ऑफ सेक्टर, कंपनी, एवरीथिंग इज दी डन बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द पावरफुल सिस्टम. तो अभी इसके कुछ फीचर्स है, उसके बारे में आप जानते. एआई बेस्ड मॉडल डिवॉइड ऑफ इमोशंस. अभी सही चीज आई है एक्चुअली, पहले में डिस्कस करना एक्चुअली मिस हुआ. स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारा, जो हमको लॉसेस करे? इट्स आवर ओन इमोशंस. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ये कैसे हर्डल से इमोशन. जैसे अभी कोई स्टॉक हमने खरीद लिया 100 रुपए में, 100 रुपए में खरीदने का तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 120 चला जाएगा तो हम बेच देंगे. बट इट कम्स टू द 90 रुपीज. फिर हम सोचते यार 90 रुपीज तक आप थोड़ा वेट कर लेते बिकॉज हमारे पास कुछ स्टॉप लॉस डिसाइडेड है. देन इट कम्स टू द 80 रुपीज. फिर हम सोचते इसको थोड़ा एवरेज कर लेते, तो हमारा जो एवरेज है वो 90 पे पहुंच जाएगा. तो 80 में अगेन कुछ बाय करते हम. देन इट्स कम टू द 70 50. देन हम खुद को बोलते वी आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. तो ये इमोशंस की वजह से स्टॉक मार्केट बदनाम है कि लोग राइट टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाते, राइट टाइम पे एंटर नहीं कर पाते. तो ये जो एआई बेस्ड मॉडल है
it ruthlessly, I'm saying ruthlessly follow the rules, because उसको ये बोला गया तो you will do that only. ये ruthlessly पूरे rules को follow करते हैं, इसमें कोई emotions नहीं. अगर कोई कंपनी इसने recommend किया है after studying all the factors, global, like local as well as company fundamental, उसके बाद अगर वो कंपनी perform नहीं कर रहा है तो ruthlessly he will throw that company out of the portfolio. So it is the main features of the AI based model. Then bottom up fundamental research. अब ये bottom up fundamental research क्या है? जैसे मैंने आपको वहां पे अलर्ट किया था डायरेक्ट इक्विटी में कि जैसे आप कभी SBI खरीद लो, बट उसके बाद मैंने एक अलर्ट दिया, नॉट सो इजी. तो हाउ AI इज लाइक टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स. ये AI का अपना एक डेटा बैंक होता है. I'll just show you. ये डेटा बैंक में ये इतने सारे फैक्टर चेक होते हैं, जैसे फंडामेंटल डेटा, इट इज हैविंग मोर देन 3.5 lakhs डेटा पॉइंट्स इन द डेटा बैंक. देन ये टाइम सीरीज एनालिसिस करता है, जैसे लाइक कितने दिन में ये परफॉर्म करेगा, थोड़ा प्रोबेबिलिटी मॉडल पे काम करता है कि आगे जाके कैसे परफॉर्म करेगा. देन कॉर्पोरेट एक्शंस को फॉलो करता है, व्हेनेवर डिक्लेयर गवर्नमेंट पॉलिसीज में कुछ चेंजेस हुए, रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेस. देन डोमेस्टिक ग्लोबल इवेंट्स क्या है, सेंटिमेंटल एनालिसिस एंड अदर मैक्रोज. मैक्रोज मतलब जो भी इकोनॉमिकल फैक्टर्स है, जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब के बारे में ये ट्रैक करता है. एंड ये सब ट्रैकिंग होता है 24/7 होता है, कि नॉट ओनली आज हुआ, कल नहीं हुआ, एक वीक में हुआ. 24/7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम मॉनिटर्स योर portfolio. Listen once again, I am telling 24/7. This is such a powerful system. और बाद में जो एडवांस क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजी, इसमें कैसा है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस क्या करता है, जैसे आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह से क्वांटिटेटिव लाइक पूरा डाइवर्सिफिकेशन कर, इसको वेट डिसाइड करता है ताकि आपको ऑप्टिमम रिटर्न मिल पाए विद द रिस्क एडजस्टमेंट. जैसे अभी जैसे आप अगर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, यू हैव 50 lakhs फंड, तो अभी कुछ 3-4 सेक्टर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें से भी जो बेस्ट कंपनी है उसको सिलेक्ट करेगा, उसमें से भी कौन से कंपनी में पोटेंशियल ज्यादा है उसमें उसको हाई वेटेज देगा और आपका क्वांटिटेटिवली पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करेगा. देन रिस्क एनालिसिस एंड मिटिगेशन. अब ये जो रिस्क एनालिसिस एंड मिटिगेशन है ना, आई टेल यू, इट इज द लाइफ सेवर टूल. लाइफ सेवर, इट इज द हार्ट ऑफ द एआई सिस्टम. जैसे डेटा बैंक अगर ब्रेन है, तो रिस्क एनालिसिस एंड मिटिगेशन हार्ट ऑफ द सिस्टम है. क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत बार जो लॉसेस होते हैं ना, दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिस्क मैनेज. ऐसा नहीं कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, एवरीवन नोज, सब न्यूज देखते हैं, सबको पता है कि अब ये शेयर्स फॉल होने वाला है, बट प्रॉपर रिस्क मैनेज नहीं कर पाते. जैसे एक ही बास्केट में पूरा इन्वेस्टमेंट चला जाता है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है. तो दिस ऑल इज टेकन केयर बाय एम्बेडेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. This is the heart of the, I can say, the artificial intelligence system. That client centric customization. इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो अभी मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो म्यूचुअल फंड में मैं जब इन्वेस्ट करूंगा तो म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर फंड को मैनेज करेगा. बट यहाँ पे क्लाइंट सेंट्रिक कस्टमाइजेशन, इसका मतलब ऐसा है कि आपको इंडिविजुअली आपका पोर्टफोलियो 24/7 एआई सिस्टम से मॉनिटर होगा. दैट मींस यू विल गेट द कस्टमाइज रॉबोट पोर्टफोलियो मैनेजर. So this is the investment philosophy of artificial intelligence. ये सब like there are different companies who are working on the artificial intelligence. तो सबका लगभग मॉड्यूल सेम है. तो इस तरीके से ये AI सिस्टम वर्क करता है. अभी यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेसिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में. तो इसके बाद हम पूरा प्रोसेस जानेंगे, हाउ इट इज प्रैक्टिकली वर्क्स, और वी विल टेक द क्वेश्चंस आफ्टर द सेशन. ओके, आई विल कंटिन्यू.
सो अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस का हाउ इट इज वर्किंग सिस्टमैटिकली इसके बारे में अब जानते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस का जो इंटरनल सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, ब्रेन कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जब भी उसको कोई पोर्टफोलियो लाइक इनपुट्स आते हैं तो सबसे पहले वो रिस्क असेसमेंट करता है, रिस्क असेसमेंट ऑफ द एंटायर मार्केट, कि जो मार्केट में अभी कौन सी सेक्टर से जो वोलाटाइल है, रिस्की है, कौन से सेक्टर से जिसमें मोमेंटम आ सकता है, उस हिसाब से वो सेक्टर रिस्क असेसमेंट करके जो लाइक लेस रिस्की सेक्टर से एंड इट इज हैविंग गुड पोटेंशियल उसको सिलेक्ट करता है। देन फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस तो मैंने जैसे आपको बताया इट इज हैविंग डेटा बैंक, वहां पे अलग अलग पैरामीटर से उसके बेसिस पे फंडामेंटल एनालिसिस करता है एंड गिव यू लाइक बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। देन प्रोबेबिलिटी मॉडल, प्रोबेबिलिटी मॉडल में क्या है, जैसे रिस्क असेसमेंट कर लिया, बाद में फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, अब कौन से शेयर्स में कितना पोटेंशियल है ये शायद हम मैन्युअली लाइक जज करना इज वेरी डिफिकल्ट, प्रिडिक्टिंग ऑफ मार्केट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज हैविंग सम टूल्स थ्रू विच ये सब पूरा प्रोबेबिलिटी मॉडल पे कैलकुलेशन करके एक प्रिडिक्शन करता है, उसके हिसाब से हमको एक कस्टमाइज पोर्टफोलियो मिल जाता है जिसमें हमने जो इनपुट्स दिया है, इन्वेस्टर ने जो इनपुट्स दिया है सिस्टम को, उसके अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो एक लाइक कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करना है, कौन से कंपनीज में कितना निवेश करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। और बाद में फाइनली जो होता है वो पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपकी जो कुछ भी जो स्क्रिप्ट है, आपकी जो कुछ स्क्रिप्ट है उसको वेट्स डिसाइड होता है, जैसे आपको एक ऑप्टिमम रिटर्न्स मिले उस हिसाब से पूरा वेट डिसाइड हो जाता है। just minute, there is some technical issue. Am I audible, sir? Yes, sir, very clear. Okay, thank you. तो ये चीज है कि यहाँ पे पूरा लाइक जैसे आपको ऑप्टिमाइज, जैसे व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन इन द स्टॉक मार्केट मींस रिटर्न्स तो चाहिए बट सेम टाइम रिस्क भी एडजस्ट होना चाहिए। तो दिस ऑल इज टेकन केयर बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप बताया, इट all is completely taken care by the system, no human interference in this। तो अभी हम ये जो मॉड्यूल है ये प्रैक्टिकली इन्वेस्टर के एंड से सोचेंगे कि ये प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। जैसे लाइक अगर कल ही आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करना है तो ये कैसे वर्क करेगा, तो उसका एक मैं विजुअलाइज एक फ्लो चार्ट में आपको डेमो देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सबसे पहले बिफोर डिस्कसिंग दिस, जो हार्ट ऑफ द सिस्टम है रिस्क मैनेजमेंट, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे मैनेज करता है उसके बारे में हम एक बार पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो जैसे मैंने पहले से बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम 24/7, अगेन लिसन केयरफुली, 24/7 आपका पोर्टफोलियो मॉनिटर करता है। तो हाउ इट टेक्स केयर ऑफ द रिस्क एंड एवरीथिंग, ये हम वन बाय वन जानेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग, जैसे आपको अलर्ट टू एग्जिट स्टॉक कंप्लीटली विथ ऑल द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर कभी आपका कोई कंपनी का टारगेट डिसाइडेड था, अगर 100 रुपए में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कोई कंपनी रिकमेंड किए एंड बाय स्टडिंग अदर फैक्टर्स बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगता है कि 150 के पास ये अब लाइक ऑप्टिमम रिटर्न हो गया है, तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेगा। देन पोजीशन साइजिंग,
पोजीशन साइजिंग ये ऐसा फीचर्स है जहाँ पे पीरियडिकली आपका जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा ट्रैक होता है, और वहां पे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगता है कोई स्क्रिप्ट में सपोज 100 से 150 पे चली गई बट पोटेंशियल है 200 या 250 तक जाने का, बट वो आपका पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेगा ताकि आपका कैपिटल वहां पे सेफगार्ड हो जाता है और बाद में आपका जो प्रॉफिट का पैसा है वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करता है। तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन साइजिंग। स्टॉक एग्जिट, ये जो हमने जो एग्जांपल लिया था कि इमोशंस कैसे लाइक डिस्टर्ब करते स्टॉक मार्केट में, कैसे हमारे दुश्मन है, तो जहाँ पे जैसे ही हमने अगर डिसाइड किया था 90 पे एग्जिट होना है तो हम वो कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ आवर इमोशन। तो मैंने ये पहले भी बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम रूथलेसली फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। अगर कोई स्क्रिप्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, इट इज व्हेन इट इज अंडर परफॉर्मिंग, तो रूथलेसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको एग्जिट कर देगा। देन आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होता है, रीबैलेंसिंग होता है, पीरियडिकली रीबैलेंसिंग होता है। जैसे लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल। सपोज आपका भी एक पोर्टफोलियो है जो अभी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, एवरीथिंग इन प्रॉफिट, एवरीथिंग इन ग्रीन, बट अगर आफ्टर द 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगता है कि मार्केट के पैरामीटर चेंज हो गए और इससे अच्छी कुछ अपॉर्चुनिटी मार्केट में आ गई है, तो वो आपका पोर्टफोलियो रिबैलेंस करता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, आपके बहुत लोगों के माइंड में रहेगा कि ये सब चीजें डेली होती है, मंथली होती है या फिर कैसे होती है। तो आई टेल यू even it is looking short term like a game, but it is not short term, it is the long term wealth creation game. So still it is periodically managing everything, but ये जनरली विद इन 1 मंथ या 2 मंथ से आपका पोर्टफोलियो सफल होता है, नॉट कि डेली हो गया। एंड यू जस्ट नीड टू गिव 5 to 10 minutes when you get the notification. एंड रिस्क मैनेजमेंट का जो लास्ट पार्ट है पोर्टफोलियो रिसेट, अब इसको तो मैं बोलता हूँ कि जैसे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम लाइफ सेवर टूल है, तो ये लाइफ सेवर ड्रग है, ड्रग। हाउ इट इज वर्क, अलर्ट एंड एग्जिट बेसिस अ फॉल इन द ओवरऑल मार्केट और सेक्टर। मतलब अगर कुछ मैसिव फॉल आने वाला है मार्केट में तो ये इमीडिएटली आपका पोर्टफोलियो काट देगा and your fund will be shifted to the debt fund or the gold fund for the time being, and बाद में जैसे ही फिर से मार्केट रिकवर करेगा तो it will start entering into the market। तो आपका जो मार्केट में जब करेक्शंस आते हैं उस टाइम पे जो लोग टूट जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट उनका वैल्यूएशन टूटता है, तो उस टाइम पे ये फीचर्स इज लाइफ सेविंग, वर्क्स लाइक अ लाइफ सेविंग ड्रग। तो इस तरीके से ये पूरा अभी रिसेंटली जब 2020 में कोविड आया था तो फरवरी में इंडिया में एक केस डिटेक्ट हुआ था, तब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया था कि मार्केट में मैसिव फॉल आने वाला है। तो जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पे था वहां से हार्डली कुछ 2-3% का करेक्शन हो, उसी टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सारे स्टॉक्स एग्जिट करवा दिए एंड कुछ पोर्शन कैश में रखा होल्डिंग पे, एंड बाकी डेब्ट फंड और गोल्ड फंड में मूव किया। तो उस टाइम पे गोल्ड भी अच्छा चला एंड देन अगेन मार्केट जैसे सेटल हुआ मार्च अप्रैल से, तो अगेन इट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग द मनी। तो आई होप इसके बारे में आपको क्लियर होगा। फाइनली हम एक फ्लो चार्ट में इसको समझेंगे ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। जैसे आप कुछ कुछ फंड लेके आप आ गए मेरे पास कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना इन्वेस्ट करना है, तो आपसे बेसिकली 3 इनपुट्स आपसे लेगा। फर्स्ट इज आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है, देन यू हैव टू टेल सिस्टम दैट हाउ मच टेन्योर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, कितने साल के लिए आप निवेश करना चाहते हो। एंड थर्ड थिंग आपका रिस्क प्रोफाइल डिसाइड होता है। अब रिस्क प्रोफाइल का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क प्रोफाइल। वन इज कंजर्वेटिव, सेकंड इज मॉडरेट एंड थर्ड इज एग्रेसिव। तो जनरली जो कंजर्वेटिव है तो उनके लिए जो अलोकेशन है 50% स्टॉक में और 50% डेब्ट गोल्ड फंड में होता है, या फिर जब मार्केट इज लुकिंग वेरी गुड उस टाइम पे पूरा के पूरा फंड इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। और जनरली जो मॉडरेट है उनके लिए 75% इक्विटी में निवेश होता है और 25% डेब्ट फंड और गोल्ड फंड। एंड देन अगर कोई एग्रेसिव है लाइक हार्डकोर ट्रेडर है
तो उसके लिए जो 100% allocation इक्विटी में होता है. But my dear friends, it's all is decided and taken care by the artificial intelligence system. मतलब ये पूरा की पूरा डिसीजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लेता है कि आपको किस तरीके से पोर्टफोलियो देना है. देन आपने एक बार ये डेटा सबमिट कर दिया तो आपके लिए पोर्टफोलियो एक क्रिएट हो जाता है. जैसे कौन से स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करना है, कितने क्वांटिटी में करना है, 1 2 3 4 ये बास्केट होता है. देन जस्ट आपको आपका ब्रोकर चूज करना है एंड जस्ट इन्वेस्ट करना है. अब ये जो चीज है एक्चुअल प्रैक्टिकल में कैसे वर्किंग होती है. जैसे एआई का अपना एक ऐप होता है और एक साइड पे आपका ब्रोकर. तो आप ये एआई आपके एआई लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आप पे ब्रोकर को इंटीग्रेट कर देते हो. तो जैसे ही कुछ 24/7 जैसे एआई आपको मॉनिटर करते हैं आपके पोर्टफोलियो को, तो जैसे ही उसमें कुछ नोटिफिकेशन आता है तो यू जस्ट आपको ऐप में से उसको अप्रूव करना है. तो इमीडिएटली जो आपके डीमैट अकाउंट में उसका एक्शन हो जाएगा. वहां पे जाके आपको सेकंड अप्रूवल देना है. मतलब एवरी टाइम यू नीड टू स्पेंड, मतलब इन अ मंथ यू नीड टू स्पेंड ओनली 5 to 10 minutes to doing this task. So you can easily do this. So artificial intelligence के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन था वो लाइक आई एम कंक्लूडिंग हियर. अगर किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो. बिकॉज आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में जो मैंने आपको शुरू में कमिट किया था कि आई विल गिव यू रोड मैप कि फ्रॉम द टुडे ऑनवर्ड्स आपको कैसे स्टार्ट करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल. आपके पास कितना सेविंग है, कैसे स्टार्ट किया, वो आपको मैं बताने वाला हूँ $1,000,000 एडवाइस में. तो उसके पहले अगर किसी के कुछ क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो. गुड इवनिंग सर. हाँ गुड इवनिंग सर. अशोक बूटे बोल रहा हूँ. हाँ बोलिए सर बोलिए. ये जो डाटा कलेक्शन है दिस इज ओनली ऑल द रजिस्टर्ड कंपनीज. Yeah. Because it is monitoring all the stocks, but जो भी हाई लिक्विड स्टॉक्स है उसमें ही रिकमेंडेशन आएगा. बिकॉज जो लो लिक्विड स्टॉक है तो ऑब्वियसली फंडामेंटल डेटा बैंक विल रिजेक्ट दैट स्टॉक. ओके, थैंक यू सर. Yeah. Anyone is having any query? I think Anup sir is good going on. किसी को अगर कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं. We'll just pause for the 1 minute. Sure. और we are always welcome. अगर किसके कुछ till time any questions are there, definitely you can ask to the Anup sir. Yeah. I think there was one question by the Prasad sir. Yeah. What is the question? Prasad sir, if I am using AI, then how loss can happen? Not understood. No, what I am saying, it is mitigate the risk. आपको जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके साथ कंपेयर करना है. कोई भी चीज है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, देयर हैज टू सम बेंचमार्क. आप किसके साथ कंपेयर करोगे तो बेंचमार्क इंडेक्स के साथ आप कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी इन द प्रॉफिट. बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होता है. और लॉस भी हुआ तो इट विल बी like low loss than the normally we are doing. Sure. So I think if the Prasad sir is there, you can unmute yourself and ask some to the sir, Anup sir, Prasad Salve. Yeah, hope you got your answer then. Thank you. Yeah, okay, so thank you. So we'll go to the next slide. Right now our most awaited topic $1,000,000 एडवाइस. अब बस मैं एक चीज बता रहा हूँ. इट इज वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल. जो मैं आने वाले 10 मिनट में जो बताऊंगा ना बहुत सिंपल चीज है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, अगर आप इसको आज से इम्प्लीमेंट करना चालू करोगे ना तो यू विल सी मिरेकल्स आफ्टर द 10 years 15 years. नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था. कैन यू हियर मी? या बोलिए सर. नहीं, एआई अगर हम यूज कर रहे हैं, सभी लोग ही अगर यूज कर रहे हैं तो एवरीबडी इज यूजिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो उसमें लॉसेस वगैरह जो होना है, बिकॉज सिस्टम इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, तो लॉसेस को हम कैसे रोक सकते हैं?
सर तो सभी लोग यूज कर रहे हैं ना ये। यस ऑब्वियसली। अभी तक देखो, अगर आप लेट मी टेल यू वन थिंग, इंडिया में अभी तक इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन इज ओनली अराउंड 3% है, तो लिक्विडिटी बहुत कम है। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे एम्बेडेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है। मैंने ये कहीं नहीं बोला कि आपको लॉस नहीं होगा, बट लॉन्ग रन यू विल बी इन द प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द एम्बेडेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमने जो प्रीवियसली डिस्कस किया रिस्क मैनेजमेंट में, everything is taken care. I'll just come back to that slide. सी, यहाँ पे जो स्टॉक एग्जिट है, रीबैलेंसिंग है और पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो रीसेट है, तो इसके थ्रू पूरा रिस्क प्रॉपरली मैनेज होता है। एंड आई विल टेल यू, यू जस्ट कंपेयर दिस विद द बेंचमार्क इंडेक्स। मतलब आप निफ्टी सेंसेक्स के साथ इसको कंपेयर करो आपके पोर्टफोलियो को, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू बेस्ट रिटर्न देन द like benchmark indexes. I hope your doubt is clear. Prasad sir, are you there? Yes, sir, will come again. Yeah, surely he will come again. Sir will come again. Definitely. Yeah, Okay. You can take that again. Yeah. तो अभी ये सब हमने डिस्कशन किया पूरा, तो मैं आपको एक $1 million एडवाइस देना चाहता हूँ। व्हाई इट इज $1 million? जैसे अगर आपको लगता है कि आपके पास वन टाइम फंड नहीं है, तो यू कैन आप दो तरीके से आपके गोल्स अचीव कर सकते हो थ्रू द इक्विटी इन्वेस्टमेंट। वन इज शॉर्ट टर्म गोल्स एंड सेकंड इज लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा? जैसे आपके जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स है, अगर किसी के आगे कुछ चिल्ड्रंस एजुकेशन है, मैरिजेस है, एक्सपेंसेस है, कुछ प्रॉपर्टी बाय करना है, तो आप स्टार्ट डूइंग SIP। आपको क्या करना है, मैं एक बजटिंग टेक्निक बताऊंगा। जैसे आपको अपना मंथली अर्निंग पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए कि आप मंथ में हाउ मच यू आर अर्निंग, उसमें से आप अलोकेशन कर लीजिए 50%। जैसे आपके जो रेगुलर एक्सपेंसेस है उसको अलॉट हो जाएगा, 10% फॉर द इमरजेंसी, 10% फॉर द एजुकेशन, बट एटलीस्ट जो 10% अमाउंट है ना, आप स्टॉक SIP में डालिए। तो व्हाट इज स्टॉक SIP? स्टॉक SIP मतलब आप बाय टेकिंग हेल्प ऑफ द एडवाइजर और एक्सपर्ट, आप अभी फाइंड आउट करिए कि कौन से सेक्टर है जो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगे और जिनके प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, सर्विसेज में पोटेंशियल है, वो जो बेस्ट सेक्टर्स है। तो उसमें की जो कंपनीज है, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, जस्ट गिविंग एग्जांपल, रिलायंस है, टाटा ग्रुप में टाटा स्टील है, या फिर बैंकिंग में SBI, HDFC बैंक है। तो आप टारगेट सेट करिए कि मेरे पास इस इंडस्ट्री के इस कंपनी का इतना होल्डिंग होना चाहिए, एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो आपका ये पोर्टफोलियो एंड ऑफ द 10 years 20 years इतना मैसिव बन जाएगा कि यू कैन नॉट इमेजिन। एंड ऑल्सो वहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी हो जाता है। तो आई गिव यू एग्जांपल व्हाट इज द कंपाउंडिंग। जैसे अभी हम मंथली इन्वेस्टमेंट ₹5000 पर मंथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते, एंड मार्केट वी एक्सपेक्ट 12% रिटर्न। एंड अगर 20 years के लिए कंसिस्टेंटली हम 5000 पर मंथ इन्वेस्ट करें, इट गोज अराउंड 12 lakhs क्यूमुलेटिव अमाउंट। तो ये जो आपका वैल्यू एट द एंड ऑफ 20 years, इट विल बिकम 49,95,740 रुपीज। सो इससे आप आपका वेल्थ क्रिएशन का गोल, यू कैन अचीव योर वेल्थ क्रिएशन गोल। और जस्ट फ्रेंड्स, ये बात मत भूलना जो मैंने आपको इन्फोसिस की स्टोरी बताई है, अगर आपने सही तरीके से स्टॉक पिकअप किया है तो आपके साथ भी इन्फोसिस, विप्रो जैसी स्टोरी रिपीट हो सकती है। तो उसके बाद आपका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन में भी हायर देन दिस। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आई विल टेल यू whatever the amount, smallest to small amount, but start the investing। आप पार्टिसिपेशन स्टार्ट करो तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में आपको फायदा होगा। एंड बल्क इन्वेस्टमेंट है तो यू कैन चूज डायरेक्ट इक्विटी, आप थ्रू द एडवाइजर यू कैन इन्वेस्ट, या फिर आप कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करके कुछ स्टॉक में निवेश करो शॉर्ट टर्म के लिए एंड बुक योर प्रॉफिट्स। और यू कैन यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एडवाइजरी सिस्टम मॉड्यूल्स विच आर अवेलेबल, और एनी एडवाइजरी। बट अभी एडवाइजरी के बारे में आपको एक बताना चाहूंगा, कोई भी एडवाइजरी का आप सिलेक्शन करते हो
तो सबसे पहले चेक इट वेदर इट इज सेबी रजिस्टर्ड और नॉट, देन उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, देन वेदर दे आर हैविंग बैक टेस्टिंग रूल, और सबसे इम्पोर्टेंट उनका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है। जब मार्केट जब बढ़ता है ना तो घोड़ा भी चलता है और गधा भी उसी स्पीड से चलता है, बट जब मार्केट में जब ठोकरें लगना चालू होता है उस टाइम पे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एडवाइजरी सिलेक्ट करते हो ये सारी चीजों के बारे में उनको जानना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। पूछो उनको हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज माई रिस्क, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दिस, आस्क एंड देन चूज योर एडवाइजरी। तो ये मैं आपको ऐसे एडवाइस करूंगा कि आपके पास कोई बल्क अमाउंट है तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद स्मार्ट टूल्स और ऑन योर ओन, एंड स्टॉक SIP करो आप ओवर द पीरियड। तो यू कैन अचीव बाय यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन, you can achieve your short term goals as well as long term value creation. So why I am giving so much importance, it is looking very simple, but जब आप इसका फ्यूचर में जाके इसका इफेक्ट देखोगे तो it is very powerful. You will not imagine what wealth creation will be done in the future. So with this, अब ये सब तो चीजें साफ इन्वेस्ट क्यों करना है वो तो समझ गया, देन मार्केट क्या चीज है वो भी समझ गया, व्हाट आर द डिफरेंट एवेन्यू दैट विल वो भी समझ गया, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, डायरेक्ट इक्विटी। बट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप जो नए लोग हैं उनके लिए कि फर्स्ट स्टेप क्या है, व्हाई आई केप्ट दिस टॉपिक एट द लास्ट, बिकॉज एवरीवन नोज अबाउट दिस, बट जो न्यू है कुछ ऑडियंस है विच आर लाइक फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट के बारे में सुन रहे, तो उनके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आपको लाइक डीमैट अकाउंट आपको लाइक ओपन करना पड़ता है द सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। तो व्हाट इज डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट इज द डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, लाइक आपका जो पोर्टफोलियो है पूरा डिजिटल फॉर्म में आपका लाइक उसमें शेयर्स आपके होल्ड होते हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इससे क्या होता है, फॉर्जरी जो मिसप्लेसमेंट है, फिजिकल डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो जाते हैं, वो सब रिस्क यहाँ पे कवर हो जाता है, तो वो कोई रिस्क आपको नहीं रहता है। और अब हम डीमैट अकाउंट के टाइप्स के बारे में जानेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, आई क्विकली फिनिश दिस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीमैट अकाउंट, one is regular demat account and other is NRI demat account। तो regular demat account में individual, partnership firm, HUF, company, trust can open their account, and NRI account में दो टाइप के अकाउंट, एक repatriable demat account and another is non repatriable demat account। इसमें एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, that difference is repatriable demat account में आप फॉरेन से डायरेक्टली फंड ट्रांसफर कर सकते हो, एंड नॉन रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट में आपको NRI अकाउंट इंडिया में ओपन करके यू कैन पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट। एंड देन जस्ट आप ब्रोकर कौन सा सिलेक्ट करना है, तो जनरली मैं आई एम पर्सनली यूजिंग द एंजल ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, आई एम द बिजनेस पार्टनर ऑल्सो। और यहाँ पे एक चीज पॉजिटिव एंजल में कि आपको पूरा एजुकेशन भी मिलता है। इफ यू आर न्यू ना तो यू विल गेट फ्री एजुकेशन अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, और बहुत सारे एडवांस टूल्स अवेलेबल, एंड इट इज द लिस्टेड कंपनी। यू कैन चूज एनी कंपनी, बट जस्ट आई एम गिविंग यू ब्रीफ अबाउट द एंजल। देन अदर थिंग जो है, अब दो जनरली ब्रोकर सिलेक्शन में दो टाइप्स के ब्रोकर होते हैं, एक डिस्काउंट ब्रोकर एंड एक सर्विस ट्रेडिशनल ब्रोकर। तो डिस्काउंट ब्रोकर मतलब जहाँ पे अब जो 20 रुपीज पर लॉट, 20 रुपीज पर ऑर्डर, ये सब चीजें, और ट्रेडिशनल ब्रोकर मतलब फुल सर्विस ब्रोकर कि आप ब्रोकर के ऑफिस में जाके उसको कॉल करके या फिर वहां पे बैठ के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इट इज सिंपल। एंड एडवाइजरी के बारे में मैंने बताया, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी। तो आई होप वी आर कवर्ड ऑल द थिंग्स एज पर द एजेंडा, एंड थैंक्स अ लॉट वंस अगेन टू द FIP, Navnath sir, Sanjay sir, Mayur sir for giving me opportunity to present my views, and just why I'm taking these sessions, because मेरा एक मिशन है। मेरा मिशन ये है कि रिटेलर्स का स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। लाइक लॉट ऑफ रिटेलर्स आर लाइक अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। टू एजुकेट द रिटेल इन्वेस्टर्स by providing financial literacy education, make them confident, independent, massive wealth creators।
तो ये मेरा एक मिशन है कि ऑटोमेशन ट्रेडिंग के बारे में लोगों में अवेयरनेस लाना है, ताकि हम जैसे हमारी इकोनॉमी गवर्नमेंट को 2.7 ट्रिलियन डॉलर से 5 ट्रिलियन डॉलर 10 ट्रिलियन डॉलर लेके जाना है, तो ऑब्वियसली हमारे सिटीजन्स को भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा एक्टिवली. So these are the popular tools which are US market participants are using nowadays. So मेरा मिशन वही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ये सब के बारे में अवेयर करना और वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करना. So I think we are done with the today's content, and as per agenda we are completed. So thank you very much, Anup sir. I hope everybody finds this very useful and as well as interesting. I requested all to share either through the chat box or unmute yourself and ask the question to the expert. Maybe this platform will be open maybe another for 15 minutes. So you can use this platform maybe for another 15 minutes. Thank you. Anup sir, Prasad here. Yes sir, yes sir, बोलिए. बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आपने. सो वी आर रियली थैंकफुल टू यू फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन, एंड it was really an eye opener for us, particularly speaking, to be very precise, it is about the artificial intelligence that you said it. So we were really not aware, so we were doing investment based on our knowledge, okay, and mostly based on the tips that we are getting it from the friends, relatives, or from the agents, and by which we have made some losses also. Okay. And that has also created a fear in our mind, and because of that we have diverted for some time to the other instruments. Okay, okay. Foolish instruments, you can say. But now with this session, we would like to get associated with you and would like to have your consultancy or services in this regard. Yes sir, yes, we have noted the details, and we will come back to you. So it was really a nice session and an eye opener, and you have prevented our further losses which we could have made it if we have not attended this session. Thank you sir, thank you, thank you. So thank you very much. Your questions to the sir. Maybe I request to the other as well. बाकी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किनका भी क्वेश्चन रहेगा तो अनूप सर से पूछे, because lot of things is with him, sir. Yeah, definitely. Thank you. Yes. Yes, I think. Anup, yeah. Hello. Yeah, please go ahead. Yeah, Anup ji, good evening. This is Good evening, Mahesh. good evening. Yeah, बोलिए सर. मैंने just 15-20 days पीछे मैंने अपना स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच के थोड़ा स्टडी करके जीरोधा में डिमैट अकाउंट ओपन करके चालू कर दिया था. Okay, great. And it owned my knowledge going through YouTube and all the things. But so when I started getting the interest, I studied with all the companies. Then I invested initially. Let me invest in Adani Power करके मैंने 10 स्टॉक होल्डिंग में डाल दिया. Then you know the status of Adani Group. How you will motivate me in this? How you will guide me in this regard? Sir, see, it is your starting phase. So होता है ऐसे. Even with the experienced traders, it happens. Okay. But आपको क्या करना है सर? एक चीज मैं आपको बताता हूँ. कोई भी कंपनी में आप निवेश करते हो तो थोड़ा सा उसका सेंटिमेंट्स देख लो और उसका वैल्यूएशन देख लो कि जैसे अदानी पावर, जैसे पावर सेक्टर में कौन सी कंपनी है, उनका वैल्यूएशन कितना है और पी रेशो क्या है. और अगर आपको लगता है ये ओवर वैल्यूड है तो थोड़ा सा उसमें सोच के निवेश करना है. बिकॉज उसके पहले मैंने उनका पूरा थोड़ा स्टडी भी किया था. उनके जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया था. सो दे इन पावर सेक्टर में नाउ देयर स्टेटस इज इन मेगाबाइट and they are planning for the investment in the gigabyte power में जो investment कर रहे हैं. So I thought it is the company is getting the expansion. So keeping in mind
So कंपनी इज वेरी गुड, आई एम नॉट टेलिंग कंपनी इज बैड, बट ये ओवर वैल्यूड हो चुकी थी अभी कुछ आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो इट हैज गिवन क्रेजी रिटर्न्स। तो जस्ट ये चीजें कैसे कि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करोगे तो ये चीजें होने वाली, तो इसको अगर अवॉइड करना है तो आपका पोर्टफोलियो आप डाइवर्सिफाई करिए, डोंट इन्वेस्ट इन अ वन स्क्रीन। तो आप अगर इसको आपका जैसे सपोज आपके पास 100 रुपीज है तो आप 10 रुपीज को 10 जगह पे डिवाइड करिए, तो कभी कोई कंपनी में ऐसा लाइक कुछ रॉन्ग न्यूज सेंटिमेंट की वजह से फॉल भी आ जाता है तो योर पोर्टफोलियो ओवरऑल पोर्टफोलियो विल बी बैलेंस्ड एंड बड़ा लॉस नहीं होगा आपको। तो आप डाइवर्सिफिकेशन पे थोड़ा फोकस करिए। नहीं, मैंने बोला ना, मैं तो टोटली न्यू, 15 दिन, जस्ट 15 to 20 days old in this. So I had invested in 3 sectors. इसमें अदानी में, then टाटा में, and then Quickheal. I am from IT sector. So I am using Quickheal from right from beginning. The company started. Then I thought let me invest in Quickheal also. So those 2 companies are performing little bit. मेरा तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, शुरुआत में हूँ, इसके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। नो इश्यू सर, आप जस्ट डाइवर्सिफाई करिए और आप स्टडी करिए। आपको अगर कुछ इफ यू रिक्वायर एनी हेल्प तो आप फीड के थ्रू कनेक्ट हो जाए, आई गाइड यू इन डिटेल कि कैसे ये सब चीजें हम कर सकते हैं प्रॉपर्ली। बिकॉज देयर आर सम साइट्स आपने जो मैंने मेंशन किया, use that screener.in, www.screener.in. It is the wonderful site जहाँ पे आपको पूरा फंडामेंटल्स के बारे में कंपनी का पता चल जाता है, और आपको कुछ और भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब इट्स पेड लाइक यू कैन सब्सक्राइब टू द पेड वर्जन आल्सो, बट फ्री में भी वहाँ पे काफी चीजें आपको मिल जाती है। तो जस्ट स्टार्ट यूजिंग दिस लाइक टूल्स। Thank you, sir, for very nice presentation. You have motivated a lot, and I'll get in touch with you. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you, Mahesh sir. Anup sir, before going, there is a 2-3 questions. I think I can see it, but before that, I will request you to just stop the presentation. And I think there is a 3 links. I think Basavara sir has given here. तो आप वीकली बिजनेस मीटिंग के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना इंडस्ट्रियल अवेयरनेस सेशन है उनके लिए ज्वाइन हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सर ने जो आज सेशन दिया है उसके बारे में आपका फीडबैक अच्छा होना चाहिए। सो जैसा फीडबैक रहेगा वैसा और भी कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या और भी कुछ नए सब्जेक्ट लेना है, सो डेफिनेटली दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी कमिटेड फॉर दैट। सो थैंक यू वेरी मच एंड यस, जस्ट गिव मी 1 minute sir. So every Wednesday there is a business meeting on this platform. I think a link is given into the chat box, so all are requested to take the benefit of this as well. And apart from that, many things is happening on this platform. I said no, understanding of the customer, understanding of the business, understanding of the collaboration, understanding of the networking, and many portfolios are happening on this platform. So I request each and everyone, please take a benefit of this. Thank you very much, sir. And before going ahead, I would request, there is a one question from Amit Shah, and saying that ki, sir, AI app name and charges. So there are so many companies are working in it. Okay. So generally, the company to whom I am associated is the Jarvis. Okay. Yeah. I'm the business partner of the Jarvis. तो अगर किसी को और डिटेल में जानना है तो थ्रू द फ्लिप प्लेटफॉर्म वी कैन कनेक्ट। तो मैं आपको और भी इसके बारे में जो और भी, जैसे अभी सेशन थोड़ा टाइम बाउंडिंग था तो बहुत सी चीजें थी जो आई कैन नॉट कवर इन दिस सेशन, तो और भी डिटेल में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में वहां पे मैं आपको 1-to-1 समझा सकता हूँ एंड आई कैन शेयर द डिटेल्स। Correct, sir. Thank you very much. And before going, I think there is one question from Raghu Nandan. Same. How we can use that AI. So same I have answered. Yeah, same question is there. Meantime, I request any other participants or the members are here, just put up some feedback. आज का सेशन कैसा था, तो will be happy, sir. May I request to the Shivshankar sir, please. Shivshankar sir, are you there? Yeah, otherwise anyone till that time, Mayur sir or anyone, please.
Yeah, Ashok sir, please. Go It ahead. was very good and informative about the stock market and how to invest and play the role your means keep your assets and keep your money in safe way and also grow the steadily with the stock market. It's Yeah, the yeah. great input by Anup sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much for your kind feedback of today's session. Yeah, may I request to the anyone? I think Raghunandan ji, you are there. You can just unmute yourself and say something about this today's session. Anyone or two takeaway out of this? Yeah. नाइस प्रेजेंटेशन. जी विमल जी, प्लीज. बहुत अच्छा समझाए आप. जी. और अनूप जी को हम तो बोलेंगे कि फिप में भी आके जल्दी जल्दी हम लोग उनको समझाएं. और समझाए ज्यादा. थैंक यू. यस 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 यस. विमल सर, क्या टेक अवे था आपका? एनी वन टेक अवे फ्रॉम द सेशन? आज के सेशन से एक टेक अवे बताएं ना सर. टेक अवे तो यही है कि स्टॉक में भी एक पोर्टफोलियो बना के इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. ये एक इन्वेस्टमेंट एरिया है. छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी करना चाहिए जी. ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए ही ज्यादातर बेनिफिशियल होता है. या श्योर. राइट. थैंक यू सर. थैंक यू सर. तो कोई बताएगा कि सर ने जो मिलियन डॉलर का एक ये एडवाइस दिया था वो क्या था एक्चुअली? कोई बताएगा अनम्यूट करके? व्हाट वाज दैट? सर एक तो क्वेश्चन है मेरा. ये जो yes. अभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस खुल रहा है, वाजीरेक्स जैसे इंडियन एक्सचेंज बोलते हैं, जेपे बोलते हैं, तो ये सब क्या है? मतलब स्टॉक के जुरिडिक्शन में आता है या फिर क्या वो सब इंटरनेशनल या कुछ? No, sir, it is mechanism same है and actually in Indian market there are lot of opportunities. So I will suggest कि जब तक गवर्नमेंट से कुछ क्लैरिटी नहीं आ जाती है, तो लीगलाइज नहीं हो जाए, तो जस्ट उससे दूर रहना सही है. बट इंडियन एक्सचेंज है ना, ये तो बोल रहे हैं जैसे जेपे भी इंडियन एक्सचेंज है, वाजीरेक्स भी इंडियन. यस यस यस, बट अभी तक पूरी रेगुलेशन लाइक रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है कुछ. अच्छा. So personally, I'll not prefer to trade in that because in Indian stock market there are a lot of opportunities. आपको अगर high risk लेना है तो just आप you can trade in the options, you can trade in the futures, where also you can get the massive returns. Okay, okay. So I'll suggest कि आप वो instrument पे work करो. जी सर. Thank you, Bimal sir. Anyone wants to have a question with Anup sir? Sir, I think in the chat box one is asking how to connect. So you can connect to the feed platform. आप संजय सर से बात करिए, संजय सर से. Sure. Connect हो सकते हैं. Yeah, sure sir, no problem. Yeah, I can connect with him as well. And Anup sir, आपके लिए बहुत सारे chat box में अच्छे ये भी feedback है. And Mahesh said it's excellent. Then Prasad sir said the session was wonderful. And yeah, Lata ma'am said explained very easy to understand. That's very important. Santosh Patil sir said thank you Anup sir for wonderful session. It was informative and knowledgeable. Great session. And yes, then Renu Prakasan said Anupji, in which fact I think we can connect with you. संजय सर, मयूर मंत्री है. जी सर. सर एक मेरा टेक अवे देना चाहूंगा. जी सर प्लीज. As I am also a chartered accountant and अनूप सर के साथ हमने. सर आप वीडियो अगर ऑन करेंगे तो आपको आपका दर्शन हो जाएगा हमें. या प्लीज. Yes sir. Great to meet you sir. Thank you. So the takeaway from this कि जैसे सर आज कोविड के इसमें सब जन वैक्सीनेशन ले रहे हैं. जैसे स्टॉक मार्केट में इमोशन ये हमारा वायरस है और इसको बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द वैक्सीन. तो मुझे लगता है कि सब लोगों ने वैक्सीन ले लिया होगा तो फिर स्टॉक मार्केट में भी एक एआई का एक्सपीरियंस लीजिए एंड देन डेफिनेटली यू विल बी अ प्रोटेक्टेड. इट्स नॉट गारंटेड कि आपको लॉस नहीं होगा, बट इट इज अ प्रोटेक्टेड लाइक वैक्सीन. सो एआई इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी वी हैव इन दिस सेंचुरी. एवरीवन शुड take the benefit of this before
Yes, sir. Thank you, Mayur, sir. thank You are you. always inspiration to everyone. Yeah, here. Yes, thank you. मैं तो बोलूँगा सर कि normally people says think outside the box, but my thinking in the stock market today, especially with the AI and risk-based thinking, I will say that don't think outside the box. There is no any box at all. Right, sir. There is no any box at all. आप जितना चाहो उतना आप उड़ सकते हैं, है ना सर? So धन्यवाद sir to the Anup sir. And yes, anyone wants to say something because we have another 2 minutes, maybe. Yeah. सर अनूप सर, आपको कैसा लग रहा है कि आपने ये अभी ऑलमोस्ट 60-70 मिनट्स आपने ये सेशन दिया? व्हाट इज योर फीलिंग? व्हाट इज योर फीलिंग टुडे? इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। और सबसे पहले जो फीडबैक्स आए, तो मैं द ऑन द मिशन आई एम वर्किंग, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन लग रहा है। यस, लाइक जो मिशन पे मैं काम कर रहा हूँ, जैसे ये सेशन से अगर लोगों के लॉस प्रोटेक्ट हो जाते, लोग अगर फर्दर लॉस करने से बच जाते, कॉन्फिडेंटली ट्रेड करते, तो दैट विल बी ग्रेट थिंग फॉर मी। दैट इज ग्रेट थिंग फॉर मी, रियली ग्रेट थिंग। थैंक यू सर। एंड डेफिनेटली आई एम थैंकफुल टू ऑल कि सबने पेशेंसली पूरे सेशन को, लाइक ऑल द लिसन पेशेंटली फुल सेशन। यस यस। देन अगेन श्रद्धा मैम का आगे आपको एक फीडबैक आया है, वेरी राइट मयूर सर, एज मयूर सर सेड, एंड यस थैंक यू वेरी मच। सो एनीवन हैज एनी क्वेश्चन और एनी क्लैरिटी? शिवशंकर सर, I will request to anyone, maybe last one, and then probably we can stop here. Maybe Amisa Shah, you want to say something by unmuting yourself? So yeah, okay, we'll just wait for 30 seconds and then probably we can, if there is no any questions. So yeah, thank you very much to Anup sir, Mayur sir, and all respected participants here. Yes, definitely it was a very power session to the everyone, and I hope it is eye-opening to the everyone, including the AI as well as the risk management portfolio, and many myths you have already declared here. So I think that will be beneficial to the each and everyone. Today we are available here today. Thank you very much to you, sir. On behalf of the FIP platform, I should also thanks to the FIP platform, Navnath sir as well. Then probably Mayur Mantri sir, Anup sir, then our respected participants, Ashok sir, Guru Charan sir, Renuka Prasasan, Basora sir, Atmisa Shah, Siddhi Loda, Lata ma'am, Santosh Patil, Siddesh ji, Bimal ji, Prasad Salve ji, Mahesh ji, Prashant ji, and I think Mr. Chandak is there, and yes, we have Mr. Shivshankar sir as well as Navnath sir also, but yes, there is some challenges for them. So thank you very much once again, Anup sir, and each and everyone. Yeah, so yes, thank you very much each and everyone, and I think that's today's quote. Any quote, sir? Today's any quote, so that we can complete this session? Anup sir, yeah, from your side. जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि स्टॉक एसआईपी के बारे में जस्ट एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे एवरीवन नोज अबाउट द वॉरेन बफेट सर, तो ही इज द लाइक बिलियनियर इन द वर्ल्ड। तो he has started his investment journey at the age of 12 years, 13 years, and still in his one book he is telling कि मैंने ये काफी जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए था, and today is the billionaire। तो just understand, तो जस्ट मैं एक कंक्लूजन पे एक चीज बताऊंगा, जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अभी शायद हमारा उल्टा हो सकता है, किसी का 31 किसी का 21, बट इट इज नॉट लेट, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आल्सो। तो सर माइनर अकाउंट क्या शेयर अकाउंट खरीद सकता है, बेच सकता है माइनर में? सर माइनर में लाइक बेनिफिशियरी के नाम से अकाउंट ओपन होगा, देयर आर सम लाइक फॉर्मेलिटीज उसमें, तो he can buy and sell, but beneficiaries जो रहेगा, जो मेजर रहेगा, जो भी पेरेंट्स है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को देना चाहिए फिर छूट ना, कि 10 साल 11 साल से ही उनको ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म में एंट्री देना चाहिए फिर। हाँ ऑब्वियसली सर, अभी हम सब मिलके ये रिकमेंडेशन करेंगे तो हो जाएगा शायद।
बच्चा लोगन को भी 18 साल से पहले कुछ करने नहीं देता है, तो बच्चे लोगन भी परेशान, एटीएम कार्ड नहीं मिल रहा है, मैं कैसे करूं मेरे को। So all are requested, please be connected, maybe for the next session as well, next Saturday, same time, and the subject will be different, and appropriate link will be shared with you. Gain your knowledge, take action in the stock investment, and change your life. With that slogan, I think I would be happy to thanks each and everyone, including the participants and all participants today, including Anup sir, Mayur sir, Navna sir, and all respected. Thank you very much, sir. And yes, thank you. So can we close it, sir, today? Yes, sir. Yes, sir. Thank Yeah, you all thank of you. you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Take care, sir, please. Yeah, thank you. I think Navna sir is there actually. Yeah. Before ending, I will request Navna sir. Navna sir, मेरा आवाज आ रहा है? Yes. Yes. Can you have some words to How the is today's session? Yeah. Can you have a few words from your side, sir? Yes, session का अच्छा रहा आपका? Yes, sir. आवाज आ रहा है मेरा? Yes. Yes, आज का अनुप जी आपका सेशन आज का काफी अच्छा रहा, आप ये प्लेटफॉर्म पे आए, इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। तो ऐसा ही आपका सपोर्ट शिव के साथ रहेगा, शिव के साथ आप जुटे रहिए। यस सर। और हम लोग एक दूसरे के हाथ में देके कैसे इंडस्ट्री को बूस्ट करें, हमारे नेशंस को कैसे हम लोग बूस्ट करें, इसके ऊपर काम करेंगे सर। It's a great time, sir. Thank you very much. Thank you for giving me. Thank you, sir. Yes, Shiv Shankar sir is there. Shiv Shankar sir, are you there? Maybe with your speech. Yes, Shiv Shankar sir. I think he has muted. But thank you very much, sir. Navna sir, and again Anup sir. And take care, sir. Bye, sir. Thank you.